Hallo, guten Tag, ich bin nochmal mit euch und heutiges Thema ist Modal Passive Voice. So Modal Passive Voice को हम use कैसे करते हैं? How to use Modal Passive Voice? So like we have some sentences. So I can write here I can buy a computer. इसका मतलब मैं एक कंप्यूटर खरीद सकता हूँ. I can buy a computer. So if we translate this sentence in English, in German, so it will be Ich kann einen Computer kaufen. तो अगर आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखोगे तो सेकंड पोजीशन पे आ रही है आपकी modal verb in the conjugated form and the infinitive form of the verb we are having on the last position. तो ये हमेशा आपकी लास्ट पोजीशन पे रहेगी और ये रहेगी आपकी फुल फॉर्म में. फुल फॉर्म को हम बोलते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म. अगर इसी सेंटेंस को हम अगर पासिव वॉइस में बोले कि हिंदी में मैं एक कंप्यूटर खरीद सकता हूँ, तो पासिव वॉइस आएगा एक कंप्यूटर मेरे द्वारा खरीदा जा सकता है. या अगर आप मेरे द्वारा को डिलीट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो कि एक कंप्यूटर खरीदा जा सकता है. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर, हाउ टू हैव द मॉडल वर्ब पासिव वॉइस? सो वेरी सिंपल. व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिंग दिस कंप्यूटर ऑन द फर्स्ट पोजीशन, देन conjugate the modal verb, then we will have the perfect form of the verb, and then verb will go on the last position. So let me write here ein Computer kann gekauft werden. So see the structure what I have used here. मैंने यहाँ पर यूज किया है सेकंड पोजीशन पे यूज किया है मैंने modal verb in a conjugated form. यहाँ पे मैंने यूज किया है participe zwei. किसका है participe zwei? जो मेन वर्ब थी kaufen, उसका participe zwei, that is gekauft. And werden is on last position in full form werden. तो अगर आप modal verb का passive voice बनाते हो, there are 4-5 types of modal verb passive voice, like present के अंदर बनेगा, then we have perfect, we have preteritum, then pluscuamperfect, then we have future eins, future zwei. So आज के हम इस टॉपिक के अंदर हम दो तरह के modal verb के passive सीखेंगे, वो रहेगा presence and preteritum. तो अभी वाला एग्जाम्पल है वो presence का है. Ein Computer kann gekauft werden. Zum Beispiel, ich habe viel Geld, was kann ich machen? Hey, du kannst einfach einen Computer kaufen. You can buy a computer. और passive voice में हम क्या बोल सकते हैं? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, कंप्यूटर खरीदा जा सकता है. Hey, du hast Geld, ein Computer kann einfach gekauft werden. कंप्यूटर आसानी से खरीदा जा सकता है. So instead of using the active voice sentences, you can easily use passive voice sentences. हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर. अभी हम क्यों मॉडल के साथ में ले रहे हैं. kann eine E-Mail, let me write again, schreiben. That means kann eine E-Mail schreiben. He can write an email. वह एक ईमेल लिख सकता है. अगर हिंदी में इसका पासिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा? एक ईमेल उसके द्वारा लिखी जा सकती है. So can we translate this one in English? An email can be written by him, or simple an email can be written. So let's convert this active voice sentence into passive voice. So this is active voice. And what would be the passive voice? Very simple. What you need to do? Just bring eine email on the first position. So this is on the first position. Eine email, then modal verb again in conjugated form on second position. So this time we are conjugating the modal verb according to the eine email, not according to kann. अब क्या आएगा? जो मेन वर्ब है उसका हमको बनाना है पार्टिसिप zwei. और यहाँ पर आपके पास में मेन वर्ब कौन सी है? schreiben. तो schreiben का पार्टिसिप zwei क्या होता है? geschrieben. So here I will write the participle zwei form of schreiben. And you must be aware what we need to do at the end of the sentence. Werden in full form. So see the sentence structure once again. Eine email is on the first position
And on second position what I did, I just put here the conjugated form of modal verb, that is can. can का मैंने यहाँ पे modal verb रखा है. And then this one, participle zwei form of the verb, participle zwei. और लास्ट के अंदर आपको यूज करना वर्डन. Eine E-Mail kann geschrieben werden. Zum Beispiel, ich arbeite in einem Büro, मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, ich habe viel Zeit, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, und मैं पूछता हूँ अपने बॉस से कि what I can do, then he or she can respond me, एक ईमेल लिखी जा सकती है तुम्हारे पास में टाइम है तो जर्मन में सेंटेंस क्या होगा, eine E-Mail kann geschrieben werden. Also ich habe Zeit und eine E-Mail kann geschrieben werden. An email can be written. या फिर एक्टिव वॉइस में बोलोगे तो एक्टिव वॉइस में आएगा यू कैन राइट एन ईमेल. सो जो आपका बॉस है वो आपको रेस्पॉन्स करेगा, तुम एक ईमेल लिख सकते हो. तो एक्टिव वॉइस के अंदर वो अगर रेस्पॉन्ड दे रहा है तो सेंटेंस ऐसे होगा, यू कांस्ट eine ईमेल schreiben. सेंटेंस स्ट्रक्चर वेरी सिंपल है. एक्टिव वॉइस के अंदर रिस्पॉन्स आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे मोडाल वर्ब का कॉन्जुगेशन हो रहा है, एंड श्राइबन लास्ट पोजीशन में इन्फिनेटिव फॉर्म में जा रही है. इन्फिनेटिव फॉर्म का मतलब होता है फुल फॉर्म के अंदर वर्ब लास्ट के अंदर जा रही है. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्टिव वॉइस सेंटेंस, दैट पर्सन कैन इजीली यूज द पैसिव वॉइस एज वेल. सो वहाँ पे वो डू का यूज नहीं करेगा, वो सिंपल बोल सकता है कि एक ईमेल लिखी जा सकती है, eine E-Mail kann geschrieben werden. Okay? Kann ich auch andere Aufgaben machen? Can I do other tasks as well? Ja, andere Aufgaben können auch gemacht werden. कि other tasks भी किए जा सकते हैं. तो उसका सेंटेंस क्या होगा? Andere Aufgaben. So this is on the first position, and since this is plural form, so what I need to do? I need to put here können modal verb in a full form. तो können modal verb यहाँ पे full form में आएगी. देन जो यहाँ पे मेन वर्ब है उसका आपको पार्टिसिप स्वाई बनाना है. मेन वर्ब मैंने यूज की थी माखन, तो माखन का पार्टिसिप स्वाई आपका होगा gemacht एंड एंडिंग विथ werden. Andere Aufgaben können gemacht werden. If you want to add the also as well, other tasks can be done. Also you are using then andere Aufgaben können auch gemacht werden. So here you can use auch. We can take more examples. So basic format क्या है, जो भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस बना रहे हो तो जो ऑब्जेक्ट है आपको उसको सब्जेक्ट की जगह पे लाना है, मोडाल वर्ब को आपको सेकंड पोजीशन पे रखना है, जो मेन वर्ब है उसका आपको पार्टिसिप स्वाई में कन्वर्ट करना है, एंड वर्डन को लास्ट में यूज करना है. राइट? एग्जाम्पल, यू कैन नॉट पार्क ए कार हियर. आई एम यूजिंग द जर्मन वर्ड्स. You cannot park a car here. That means आप यहाँ पर कार को पार्क नहीं कर सकते. You cannot park a car here. Auf Deutsch sagen wir so: Du kannst hier kein Auto parken. Du kannst hier kein Auto parken. तुम यहाँ पर कोई भी ऑटो पार्क नहीं कर सकते. अगर आपको बोलना है कि तुम यहाँ पर एक ऑटो पार्क नहीं कर सकते, एक वर्ड आपको यूज करना, तुम यहाँ पर एक ऑटो पार्क नहीं कर सकते, देन व्हाट वी नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू रिप्लेस दिस काइन विथ निस्ट. तो यहाँ से काइन हट जाएगा, निस्ट पीछे चला जाएगा. कैसे? Du kannst hier ein Auto nicht parken. Since we are aware where to use kind and where to use nicht, very simple. अगर आप नाउन को डिनाई कर रहे हो तो आपको kind की फॉर्म लगानी पड़ती है, अगर आप वर्ब को डिनाई कर रहे हो तो आपको निस्ट की फॉर्म लगानी पड़ती है. निस्ट की कोई फॉर्म नहीं होती, बेसिकली निस्ट लगाना पड़ता है, अदरवाइज आपको kind की फॉर्म आपको लगानी होती है. दोनों का अगर हिंदी में ट्रांसलेशन देखोगे, du kannst hier kein Auto parken, तुम यहाँ कोई भी ऑटो पार्क नहीं कर सकते. सेकंड वाले का, तुम यहाँ एक ऑटो पार्क नहीं कर सकते. सो इट्स अप टू यू व्हाट इज द सिचुएशन एंड विच सेंटेंस यू नीड टू डू. राइट? कौन सा सेंटेंस चाहिए आप इसको यूज कर सकते हो. तो ये वाले जो सेंटेंस है, दीज सेंटेंसेस आर द एक्टिव वॉइस सेंटेंस. एक्टिव वॉइस कैसे है? सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रही है, जो सब्जेक्ट जो एक्शन ले रहा है अकॉर्डिंगली आपका सेंटेंस बन रहा है. बट व्हाट विल हैपन इन द पैसिव वॉइस? वेरी सिंपल. आप ऑब्जेक्ट को पहले लेके आओ, सब्जेक्ट को हटा दो. के द्वारा यहाँ पार्क नहीं की जा सकती है. अगर आपको के द्वारा, बाय यू वर्ड आपको यूज करना है, देन आपको फोन लगाना है, अदरवाइज आप उसको हटा सकते हो.
So I will bring this on the first position, ein Auto. यहाँ पर जो कांस था that was according to do, बट यहाँ पे जो मैं कॉन्जुगेशन का लगाऊंगा मोडाल वर्ब का, that will be according to ein Auto. तो ein Auto के साथ में होगा कान, ein Auto कान. Here nicht gepackt worden. सो सेंटेंस क्या हुआ, ein Auto kann hier nicht gepackt worden. यहाँ अपना एक एग्जाम्पल हमने लिया मोडाल वर्ब जो क्योनन है उसके साथ में. अब हम दूसरी मोडाल वर्ब के साथ में और एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे नेक्स्ट मोडाल वर्ब लेते हैं sollen. sollen मीन्स should. I should learn a language. That means मुझे एक लैंग्वेज सीखनी चाहिए, मुझे एक लैंग्वेज सीखनी चाहिए. अगर इसको हम हिंदी में पासिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो क्या होना होगा, एक लैंग्वेज सीखी जानी चाहिए. अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारे द्वारा सीखी जानी चाहिए तो मैं लगाऊंगा बाय यू इन इंग्लिश, और जर्मन में लगाऊंगा फोन दियर. बट अगर मुझे वो मेंशन नहीं करना है कि किसके द्वारा सीखी जानी चाहिए तो मैं फोन दियर, फोन मियर ये सब हटा दूंगा. तो दोनों एग्जांपल ले लेते हैं. आई शुड लर्न ए लैंग्वेज. पहले इसको जर्मन में ट्रांसलेट करते हैं. इस soll eine Sprache lernen. That means I should learn a language. फर्स्ट पोजीशन पे आपका इस आया है. सेकंड पोजीशन पे आपका कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ द मॉडल वर्ब दैट इज soll विथ ish, एंड दिस इज accusative. वाई accusative? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपका वर्ड से बन रहा है. लर्नन इज इन फुल फॉर्म दैट इज ऑन द लास्ट पोजीशन. शुड. जो फॉर्मेट रहता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है, वो सेम रहेगा सभी मॉडल वर्ब के साथ में. ऐसा नहीं है कि इस मॉडल वर्ब के साथ में कुछ हुआ तो दूसरे के साथ में कुछ हुआ, अलग हो रहा है. सो बेसिकली जो क्योनन मॉडल वर्ब के साथ में जो हमने फॉर्मेट सीखा था वही फॉर्मेट दूसरे मॉडल वर्ब के साथ में रहेगा sollen. सो हियर वी कैन टेक वन एग्जांपल, लाइक इफ समबडी इज गिविंग यू एडवाइस, डू sollst eine Sprache lernen. That means you should learn a language. फर्स्ट पोजीशन पे आपका डू है, सेकंड पे कॉन्जुगेटेड मॉडल वर्ब है, डू के साथ में st लग रहा है. eine Sprache जो a लैंग्वेज है that is in accusative, and lernen is in infinitive form on the last position. जो lernen है आपका लास्ट पोजीशन में रहेगा और ये रहेगा आपका हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म में. डू sollst eine Sprache lernen zum Beispiel. अगर मैं जर्मनी जा रहा हूँ और मैं किससे एडवाइस मांग रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, जर्मनी जाने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है. zum Beispiel ich möchte nach Deutschland fliegen und dort möchte ich einfach arbeiten. Also ich habe keine Ahnung was eigentlich ich machen soll. क्या करना चाहिए मुझे. तभी मेरा फ्रेंड मुझे सजेशन देता है कि you should learn a language. Du sollst eine Sprache lernen. Du sollst eine Sprache lernen. Aber ich habe keine Lust darauf. Dann warum soll ich deutsche Sprache lernen oder irgendwelche Sprache lernen? मुझे क्यों दूसरी लैंग्वेज सीखनी चाहिए. तो instead of using these active voice sentences, आपका जो फ्रेंड है जो आपको सजेशन दे रहा है वो डायरेक्ट आपको पासिव वॉइस के अंदर भी सजेशन दे सकता है कि एक लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए. इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस कि तुमको एक लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए, डू sollst eine Sprache lernen, वो आपको यह भी कह सकता है कि एक लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए. इसमें वो टू वाला वर्ड यूज नहीं कर रहा है. तो इसमें क्या आएगा, eine Sprache को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आऊंगा मैं, eine Sprache first position, and on the second position what will happen, the conjugated modal verb will be there according to eine Sprache, not according to do. तो eine Sprache के अकॉर्डिंग do का जो कॉन्जुगेशन होगा, इसका sollen का कॉन्जुगेशन होगा, वो होगा आपका soll. So eine Sprache soll, and then what I need to do, I need to put here the participle zwei form of lernen, so it will be gelernt. And लास्ट के अंदर आएगा आपका वर्डन.
सो eine Sprache soll gelernt werden। अगर आपको मेंशन करना है कि तुम्हारे द्वारा एक लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए तो यहां पर क्या यूज करना आपको, फोन। eine Sprache soll von dir। जब आपको मेंशन करना हो कि किसके द्वारा करनी चाहिए तब आपको फोन दियर लगाना है, मेंशन नहीं करना, सिंपल बोलना है कि एक लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए तो आप यूज करोगे eine Sprache soll gelernt werden। Also instead of using von dir, just delete this one, just ignore it and use eine Sprache soll gelernt werden। Und welche andere Aufgaben oder welche andere Tätigkeiten muss ich machen? क्या टास्क मुझे करना है, क्या एक्टिविटीज मुझे करनी पड़ेगी। वापस रेस्पॉन्स आता है viele Sachen sollen gemacht werden, viele Sachen sollen geplant werden। बहुत सारी चीजें प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, तो ये पासिव वॉइस के अंदर होता है। We can take more examples. I hope you are getting my points that how to do the modal verb passive voice. We have done with können, sollen. He should not drive a car। अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हो कि उसको कार नहीं चलानी चाहिए, एक कार उसको नहीं चलानी चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, हम इसको सबसे पहले जर्मन में ट्रांसलेट करते हैं। जर्मन में होगा एयर जॉल, ही को बोलेंगे एयर। एयर के साथ में जो जोलन की मॉडल वर्ब रहेगी वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म रहेगा जॉल। एयर जॉल काइन ऑटो फारन। इसका मतलब क्या हुआ, उसको कोई भी कार नहीं चलानी चाहिए, उसको कोई भी कार नहीं चलानी चाहिए। अगर इसी को अपन पासिव वॉइस की लैंग्वेज से बोलें तो क्या बोलेंगे, कोई भी कार नहीं चलानी चाहिए, मीन्स उसको चलाई जानी चाहिए, कोई भी कार नहीं चलाई जानी चाहिए। तो सेंटेंस वुड बी इन पासिव वॉइस, यू कैन ऑल्सो ट्राई। मीनवाइल आई एम जस्ट राइटिंग हियर। काइन ऑटो को लेके आओगे आप फर्स्ट पोजीशन पे, काइन ऑटो soll gefahren werden। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट पोजीशन पे आपको काइन ऑटो लगाया, सेकंड पे कॉन्जुगेटेड फॉर्म लगाया मैंने जोलन की, जो फारन होता है उसका पार्टिसिप स्वाई लगाया, दैट इज gefahren werden आपका लास्ट पोजीशन पे आ गया। ठीक है, आप ट्रेवल पे जा रहे हो, ich möchte einfach ein Auto fahren, तब मुझे एक एडवाइस मिलती है, nein du sollst kein Auto fahren, तुम्हें कोई भी ऑटो नहीं चलाना चाहिए, या du sollst ein Auto nicht fahren, तुमको एक कार नहीं चलानी चाहिए। फिर क्या बोलूँगा मैं, अगर पासिव वॉइस में अगर बोलना है तो du sollst kein Auto fahren, एक्टिव वॉइस। पासिव वॉइस रहेगा ein Auto soll nicht gefahren werden और kein Auto soll gefahren werden, ये होगा आपका पासिव वॉइस में। तो जो ये हमने सीखा है ये है आपका प्रेजेंस वाला एग्जांपल्स। जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग के अंदर, मॉडल वर्ब के जो फॉर्म्स रहेंगे वो रहेंगे प्रेजेंस के साथ में, सेकंड रहेगा आपका प्रेटेटुम, थर्ड रहेगा आपका परफेक्ट, फोर्थ वन इज प्लुसकामपर्फेक्ट, then we will have future eins, then sixth one future zwei। तो पासिव वॉइस का जो टॉपिक है बहुत बड़ा है, आज हमने किया अभी तक प्रेजेंस, अब सेकंड वाला अपन करेंगे प्रेटेटुम। प्रेटेटुम में क्या होगा, जो मॉडल वर्ब है उसकी प्रेटेटुम फॉर्म आ जाएगी, जैसे क्योनन है उसका कॉन्टन आ जाएगा, जोलन है उसका जोल्टन आ जाएगा। एग्जाम्पल्स, इस सेंटेंस को अगर आप देखते हो, डू कॉन्टेस्ट आइनन ब्रीफ श्राइबन, मीन्स कि तुम एक लेटर लिख सकते थे। फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा आपका डू, सेकंड पोजीशन पे कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट क्यों, क्योंकि जो मॉडल वर्ब होती है क्योनन, इसका जो प्रेटेटुम फॉर्म होती है दैट इज कॉन्टन। क्योनन इज द प्रेजेंस फॉर्म एंड प्रेटेटुम फॉर्म इज कॉन्टन। अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो ये तो आपका होता है कैन और ये होता है आपका कुड। तो सेंटेंस बना है कुड से,
डू कॉन्टेस्ट einen ब्रीफ schreiben, यू कुड राइट ए लेटर, बट तुमने लिखा ही नहीं है। तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम था बट तुमने लेटर लिखा ही नहीं है। डू हार्टेस्ट फील साइट, अब लाइटर हार्टेस्ट डू काइंड ब्रीफ लाइटर हार्टेस्ट डू काइंड ब्रीफ geschrieben, तुमने कोई भी लेटर नहीं लिखा है। अगर इसका पासिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, सिंपल फॉर्मेट है, that object whatever we have here the einen brief that will come on the first position and then you need to conjugate the modal verb that is content, और बाकी वाला जो फॉर्मेट था जो प्रेजेंस में सीखा था वही रहेगा। तो सेंटेंस रहेगा ein brief। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर था einen brief, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ein brief, दैट मीन्स वो आकुजेटिव में था, अब यहाँ पर आकुजेटिव में नहीं रहेगा। सिंपल अगर वो नॉमिनेटिव की तरह आ गया यहाँ पर ein brief कॉन्टे geschrieben worden। तो पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पे भी आपका चेंज नहीं आया है। जो चेंज आया है वो आया है आपका मोडाल वर्ब के साथ में, जो कि फॉर्म चेंज हुई है। पहले क्योनन लगा रहे थे, अब हम कॉन्टन लगा रहे हैं। इस तरह की सिनारियोज आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो कि तुम एक मेल लिखी जा सकती थी, एक लेटर लिखा जा सकता था, ये टास्क किया जा सकता था पर तुमने नहीं किया। तो जब जब आपको इसको बोलना है, मेंशन नहीं करना कि किसके द्वारा किया जा सकता है। इसका अगर एक्टिव वॉइस देखेंगे तो ये था कि डू कॉन्टेस्ट einen ब्रीफ schreiben, तुम एक लेटर लिख सकते थे। पासिव वॉइस में आया एक लेटर लिखा जा सकता था। अगर इसमें आपको बताना है कि एक लेटर तुम्हारे द्वारा लिखा जा सकता था तो यहाँ पे आप फोन लगाओगे, ein brief konnte von dir। फोन क्या है, एक दाटिव प्रीपोजिशन है, एंड व्हाट इज दिस dear, because this is the dative preposition, so next noun or pronoun what will happen, that will go in dative part। so dear is the form of do, like in nominative we have do, then we have dish, and then we have dear। so since we are having here form, that is the reason we have to use dear। ein brief konnte geschrieben werden। ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मैं बाहर गया था, वापस आया, ब्रेकफास्ट रेडी नहीं हुआ, खाना नहीं बनाया, तो मैं बोलता हूँ खाना बनाया, das Essen konnte gekocht werden, das Essen konnte vorbereitet werden, प्रिपेयर किया जा सकता था, बनाया जा सकता था। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये सभी है आपके पासिव वॉइस के। बहुत बड़ा टॉपिक है, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कवर इन 20-30 मिनट्स। तो कमेंट के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी वेबसाइट का नाम है www.sulify.com। means if you want to have more information you can buzz me anytime, I'll put there my WhatsApp number as well, but this is basically a very long topic and how to use it वो मैंने आपको बताया है। ओके तो अगर बोले कि वीडियो देखे जा सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, वीडियोस क्योंन gekocht werden, या ये पासिव वॉइस है, वीडियोस क्योंन gekocht werden, देखे जा सकते हैं, वीडियोस देखे जा सकते थे, वीडियोस konnten gekocht werden। so I'm using here gucken verb। gucken means to watch, to watch। आगे वाला जो वीडियो रहेगा उसके अंदर हम नेक्स्ट वाला पासिव वॉइस लेंगे। प्रेजेंस हम कवर कर चुके हैं, प्रेजेंट हम कवर कर चुके हैं, नेक्स्ट वाले हम परफेक्ट करेंगे, प्लस का हम परफेक्ट करेंगे, प्लस वी विल डू रिवीजन फॉर दिस एज वेल। तो अब आप यहाँ पे बोलोगे कि रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन किया जाना चाहिए, तो उसको आप एक्टिव वॉइस में बोलने की जगह आप यूज़ कीजिए पासिव वॉइस। कैसे, Die Wiederholung soll gemacht werden। Wiederholung मीन्स द रिवीजन, जोल आपने लगाई है मॉडल वर्ब का कॉन्जुगेटेड फॉर्म, और रिवीजन का तो वहाँ पे सब्जेक्ट में बना दिया, माखन का आपने बनाया gemacht एंड werden। तो Wiederholung soll gemacht werden। ठीक है, आप मुझे मैसेज भेज रहे हो तो आप बोलते हो कि मैसेज भेजा जाना चाहिए, eine Nachricht soll geschickt werden। एक मैसेज भेजा जाना चाहिए, कौन भेज रहा है पता नहीं है। अगर मैं बोलूँ तुम्हारे द्वारा भेजा जाना चाहिए तो फोन लगा दीजिए, अदरवाइज आप सिंपल बोलिए eine Nachricht soll geschickt werden, एक मैसेज भेजा जाना चाहिए था, eine Nachricht sollte geschrieben werden। So, heute haben wir Modalverb passiv gelernt. Und was brauchen wir eigentlich? Wir brauchen viele Übungen, weil auf Deutsch man so sagt, Übung macht den Meister. Danke sehr.